ابھی ہم اسٹارٹ کریں گے پریکٹس سیٹ 2.3 جس میں سارے جو کوشچنز ہیں سارے سوالات کامل مربع کے طریقے پر مبنی ہیں. جتنے بھی سوال ہم حل کریں گے وہ کامل مربع کے طریقے سے حل کریں گے. تو کامل مربع کے طریقے کو انگلش میں کہتے ہیں کمپلیٹنگ اسکوائر میتھڈ. پریکٹس سیٹ 2.3 میں جو سوال ہم کو کرنا ہے وہ کامل مربع کے طریقے سے کرنا ہے, لیکن اس میں دو کیٹیگری کے سوال ہیں, دو ٹائپ کے سوال ہیں. ایک ہے ٹائپ 1 اور ایک ہے ٹائپ 2. ٹھیک ہے, ٹائپ 1 کون کون سے سوال ہے؟ کوشچن نمبر 1, 2, 3 اور کوشچن نمبر 4, 5, 6 یہ جو ہے یہ ٹائپ 2 کے سوال ہے. یہاں دیکھیے آپ ایک منٹ. تو مندرجہ ذیل یہ جو پریکٹس سیٹ ہے 2.3 مندرجہ ذیل مربع مساوات کامل مربع کے طریقے سے حل کیجیے. تو حل کرنے کیا رہا ہے مربع مساوات کو, لیکن طریقے کا نام ہے کامل مربع کا طریقہ. تو پہلا سوال, دوسرا سوال, تیسرا سوال یہ ٹائپ 1 ہے آپ کا. ٹھیک ہے, اور باقی کے جو 3 کوشچن ہے کوشچن نمبر 4, 5, 6 یہ آپ کا ٹائپ 2 ہے. ٹھیک ہے, تو کیوں ٹائپ 1 ہے اور کیوں ٹائپ 2 ہے وہ سمجھ لیتے. تو ٹائپ 1 یہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں جو پہلا متغیر ہے ایکس کی قوت 2 سب سے بڑا متغیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے بڑی قوت ہوتی ہے متغیر کی, اس کا ضریب کچھ نہیں ہے مطلب 1 ہے. یہاں پر بھی ایکس کی قوت 2 کا ضریب قوت 2 والے متغیر کا ضریب کچھ نہیں ہے مطلب 1 ہے. یہاں پر ابھی ایم کی قوت 2 ہے نا, یعنی کہ متغیر قوت 2 والے کا ضریب 1 ہے. ٹھیک ہے, تو ایک جب ضریب 1 ہوگا تو وہ ٹائپ 1 ہوگی. ٹھیک ہے, وہ ٹائپ 1 ہوگی. اور جب ضریب 2 1 سے زیادہ ہوگا, جیسے یہاں وائی کی قوت 2 کا ضریب آپ دیکھ رہے ہو 9 ہے, 1 سے زیادہ ہے. یہاں وائی کی قوت 2 کا ضریب 1 سے زیادہ ہے یعنی 2 ہے. یہاں ایکس کی قوت 2 کا ضریب 1 سے زیادہ ہے یعنی 5 ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹائپ 2 ہوگا. ٹھیک ہے, تو ٹائپ 1 کب ہوگا؟ جب ایکس کی قوت 2 کا ضریب 1 ہوگا, جب ایکس کی قوت 2 کا ضریب 1 ہوگا تب وہ ہوں گی ٹائپ 1. ٹھیک ہے, اور جب ایکس کی قوت 2 کا ضریب 1 سے زیادہ یعنی کہ کچھ بھی 2, 3, 4, 5 ہے نا, 1 سے زیادہ ہوگا تب وہ ٹائپ 2 ہوگا. ٹھیک ہے, تو ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے وہ ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا. اب اس مشق کو شروع کرنے کے لیے آپ کو بچپن میں جانا ہوگا, یعنی کہ اپنے کچھ بنیادی ضابطے آپ کو پتا ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, بنیادی ضابطے جس کو ہم بولتے ہیں بیسک فارمولے. کیا ہے بیسک فارمولے, بنیادی ضابطے؟ تو آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا A جمع B دا ہول اسکوائر ہوتا ہے A کی قوت 2 جمع 2AB جمع B کی قوت 2. یہ ضابطہ ہم کو استعمال ہونے والا ہے اس مشق میں. اسی طریقے سے اس کا نفی والا بھی ضابطہ ہم نے پڑھے. سیم چیز ہے, بس بیچ میں کیا ہے نفی ہے, یہاں جمع تھا اور یہاں نفی ہے برابر. تو کیا ہوتا ہے پورا سیم لکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, علامتیں نہیں ڈال رہا ہوں میں ابھی. اب آخر والی جو علامت ہے وہ جمع جیسا کہ ویسی ہوتی ہے, بس یہ والی جو علامت ہے یہ نفی ہو جاتی ہے, یہ جمع نہیں ہوتی. بس فرق صرف یہاں پر ہے. ٹھیک ہے, پہلے والے میں آپ کو جمع ہے, دوسرے والے ضابطے میں آپ کا کیا ہے نفی ہے. ٹھیک ہے, اوکے. تو یہ 2 ضابطے لگیں گے. البتہ ایک اور ضابطہ آپ کو یہاں لگے گا, وہ ہے A کی قوت 2 نفی B کی قوت 2. پچھلی مشق میں بھی ہم نے دیکھے, تو وہ ہوتا ہے A نفی B A جمع B ہے نا. تو یہ 3 ضابطے آپ کو لگنے والے اس مشق میں, پہلا, دوسرا, تیسرا. تو آپ سبھی یہ ضابطے یاد کر لیں گے. یہ بنیادی ضابطے ہیں, آپ نے گزشتہ جماعتوں میں گزشتہ کلاس میں آپ نے اس کو پڑھ چکا ہے, آپ پڑھ چکے ہیں, تو آپ اس کو یاد کر لیں گے اچھے سے. ٹھیک ہے, یہ تینوں ضابطے. اب اس میں امپورٹنٹ کیا ہے وہ سمجھنے کی بات ہے. اگر میں اس ضابطے کو بناؤں ایسے تو متغیر لے لیتا ہوں ایکس جمع وائی, اب ہے نا. تو یہ کیا بنے گا, ایکس کی قوت 2 جمع 2 ایکس وائی جمع وائی کی قوت 2 برابر.
इसी ज़ाब्ते से मैंने बनाया, इसी ज़ाब्ते से, पहले वाले ज़ाब्ते, बस ए बी की जगह पर मैंने क्या रख दिया, एक्स और वाई रख दिया। इसी तरीके से इसका नफी में बनाएंगे तो सेम आएगा, बस यहाँ नफी आएगा शुरू में एक्स की कुव्वत 2 और यहाँ नफी आ जाएगा, बाकी ये जैसा के वैसा, ठीक है, यहाँ तो जमा ही रहता है लास्ट में। अब यही ज़ाब्ते को हमको इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसी ज़ाब्ते को हमको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो इस ज़ाब्ते में हमारे काम की जो चीज़ रहेंगी वो रहेंगी इतनी शुरू की, ये और ये, ठीक है, ये हमारे काम की चीज़ होगी। क्या है वो काम की चीज़, वो मैं अलग से यहाँ लिख देता हूँ रेड में ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो सॉरी, काम की चीज़ रहेगी एक्स की कुव्वत 2 जमा 2xy और उसी तरीके से एक्स की कुव्वत 2 नाफी 2xy, ठीक है। तो ये हमको लगने वाला है यहाँ पर। तो देखते हैं अब मश्क में कैसे इसका इस्तेमाल होगा और किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। चले शुरू करेंगे इस मश्क का पहला सवाल, तो जो कि टाइप 1 का है। तो आपने यहाँ सवाल देख रहे हैं एक्स की कुव्वत 2 जमा एक्स नफी 20 बराबर 0। तो मैंने इस सवाल को हल लिख के दोबारा उतार लिया और लास्ट मैंने आपको बताया था कि हमको क्या चीज़ इस्तेमाल होने वाली है। तो ये रहा है ना, ये बताया था मैंने आपको लास्ट इसमें कि ये हमको इस्तेमाल होने वाला है। तो हमने ये लिख लिया यहाँ पर, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों हमने यहाँ पर लिख लिया है, दिख रहा है आपको। अब सवाल ये कि जमा वाला इस्तेमाल करेंगे या नफी वाला, तो उसके लिए हमको यहाँ पर अपने सवाल में देखना है। तो ये टाइप 1 इसलिए क्योंकि इसका ज़रीब एक्स की कुव्वत 2 का ज़रीब कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये ब्लैक पार्ट को आपको ये ब्लैक पार्ट से मुआवजा करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ब्लैक और रेड इंक का इस्तेमाल किया है। तो एक्स की कुव्वत 2 जमा एक्स, ये जो इतना है इसका आपको मुआवजा करना है इन दोनों में से एक के साथ। अब सहारा के जमा वाले के साथ करेंगे या नफी वाले के साथ करेंगे, तो आपकी अलामत क्या है, यहाँ पर आपकी अलामत है जमा, राइट, बीच में है ना। तो आपकी अलामत जमा है, तो आपका जमा वाला पहला वाला है ना। तो हम पहले वाले के साथ मुआवजा करेंगे। तो मैं लिखूंगा कि ये तो रफ है आपका, तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा अगले स्टेप में कि इतना पार्ट पहले एक्स की कुव्वत 2 जमा एक्स की कुव्वत 2 जमा एक्स का मुआवजा किससे, ये पूरे से, पहले वाले से ये लिखेंगे हम एक्स की कुव्वत 2 जमा 2xy से करने पर, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब मुआवजा कैसे करते हैं, इसको लिखेंगे पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे करना है, इसलिए एक्स की कुव्वत 2 जमा एक्स ये लिखे, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे दूसरी तरफ एक्स की कुव्वत 2 जमा 2xy और दोनों के दरमियान में बराबर डालेंगे, ठीक है। तो ये मुआवजा कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड। तो अब आप देखिए आपका क्या होगा, एक्स की कुव्वत 2 और एक्स की कुव्वत 2 कट गया बराबर, ठीक है। तो क्या बच गया हमारा यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा है इसलिए एक्स बराबर और राइट हैंड साइड में बचा है 2xy, है ना। अब हमको क्या करना है, इसमें से y की कीमत निकालनी है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, y की कीमत क्यों निकालनी है, तो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो ज़ाब्ता, ये नहीं लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या है वो ज़ाब्ता हमारा, ये यहाँ पर मैंने आपको बताया पहला ज़ाब्ता जमा वाला, राइट। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में y की कुव्वत 2 है ना। तो ये y की कुव्वत 2 हमको मालूम करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये y, तो ये y हम पहले इसके लिए मालूम, मतलब इसका आखिरी जो रुकन है बात का जमा y की कुव्वत 2 वो हम यहाँ पर मालूम कर रहे हैं इसके जरिए से, ठीक है। तो कैसे करेंगे तो देखते, इसलिए x यहाँ जैसा कि वैसा। अब ये जो 2x है y के साथ, ये यहाँ ज़र्ब में है, बराबर के दूसरी तरफ आएंगे तो तकसीम में, है ना। तो मैं इस 2x को यहाँ से यहाँ ले आ जाता हूँ, तो ये नीचे आ गया तकसीम में, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास राइट हैंड साइड में बराबर y बच गया से। अब क्या होगा, x और x दोनों जगह से कट गए, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, तो इसलिए 1/2 बच गया लेफ्ट हैंड साइड में, बराबर यहाँ बचा y।
अब तरतीब में ले आते पहले इसको, y को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, 1/2 को राइट हैंड साइड में, दोनों को एक साथ कर रहे हैं तो कोई अलामत बदलेंगी नहीं। अब मुझे सिर्फ y नहीं चाहिए, मुझे चाहिए y की कुव्वत 2, है ना, यहाँ देख रहे हैं ज़ाब्ते में। तो मैं दोनों तरफ मुरब्बा करूंगा, तरफैन का मुरब्बा। तो जब मैं तरफैन का मुरब्बा करूंगा तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगी, कुव्वत 2 आ जाएगी, बराबर 1/2 के ऊपर भी क्या आ जाएगी, कुव्वत 2 आ जाएगी। लिखूंगा मैं मुरब्बा करने पर, क्या किया मैंने इस स्टेप में, दोनों तरफ मुरब्बा किया, इसलिए मुरब्बा। तो ये हो जाएगा, इसलिए y का मुरब्बा, y की कुव्वत 2 बराबर 1, यहाँ पर दोनों का मुरब्बा लेना, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी, 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4। तो हमको y की कुव्वत 2 यानी कि तीसरा रुकन मिल गया। y की कुव्वत 2 कितना मिला, 1/4। इसी को हम बोलते हैं उर्दू में तीसरे रुकन को सह रुकनी। क्या कहते हैं, सह रुकनी। ये एक फिक्रा है, सह रुकनी फिक्रा, क्या कहते हैं हम इसको, सह रुकनी फिक्रा। ठीक है, तो देखते हैं अभी इसको आगे कैसे करेंगे। तो अब इसको लिखेंगे इस तरीके से, ये आ गया हमारा y की कुव्वत 2 बराबर 1/4। तो इसको ऐसे लिखना है हमको, इसलिए पहले ये जो हमारा था इतना पार्ट, ये वाला इतना पार्ट सवाल के शुरू का, ये पहले लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो कैसे होगा, ये लिखेंगे x की कुव्वत 2 जमा x, ये लिख लिया उतना पार्ट। और अभी सह रुकन यानी कि लास्ट का टर्म, तीसरा रुकन, वो क्या आया हमारा 1/4, है ना, तो वो इसमें जमा कर देंगे, जमा 1/4, तीसरा रुकन मिला दिए। ठीक है, इसको हम बोलेंगे, ये क्या है, एक सह रुकनी। अब ये तीसरा रुकन लगा दिया हमने, तो इसलिए 3 रुकन हो गए, 1, 2 और ये तीसरा। ठीक है, 3 रुकन हो गए। तो एक सह रुकनी कामिल मुरब्बा। क्या मतलब होता है कामिल मुरब्बा, यानी कि आप 1/4 इसके आगे आपने लगाया। आप देखिए सवाल में क्या है, सवाल में नफी 20 है, नफी 20 के होने की वजह से ये इस ज़ाब्ते में नहीं आ सकता। कौन से ज़ाब्ते में, ये पहले वाले ज़ाब्ते में, ये वाले ज़ाब्ते में। ठीक है, तो अब अगर हमको ये बनाना है ब्रैकेट, तो इसके लिए जो तीसरा रुकन है, ठीक है, सह रुकनी फिक्रा, वो हमको मालूम करना है। ठीक है, तो इसीलिए हमने नफी पोस्ट में सह रुकनी फिक्रा नहीं है, वो कामिल मुरब्बा नहीं है, तो हमने वो कामिल मुरब्बा मालूम किया। अभी कहाँ पर मालूम किया, ये है वो कामिल मुरब्बा, y की कुव्वत 2 बराबर 1/4, है ना। तो अब वो कामिल मुरब्बा जो हमने मालूम किए वो हमने यहाँ लिख दिया। तो अब ये बन गया एक 3 रुकनी, सह रुकनी यानी 3 रुकनी कामिल मुरब्बा, पूरा बन गया ये फिक्रा। ठीक है, कामिल मुरब्बा फिक्रा है। अब इसके बाद हमको अपना सवाल लिख लेना। तो सवाल कैसे लिखेंगे, अब सवाल के लिए भी देखिए यहाँ पर, इसलिए हमारा सवाल क्या था, सिर्फ इतना था, राइट, शुरू का x की कुव्वत 2, मतलब ये पूरा है यहाँ तक सवाल है, लेकिन हम शुरू का पहले लिखेंगे, x की कुव्वत 2 जमा x। ठीक है, और अभी तीसरा रुकन आया जमा 1/4। ठीक है, अब जब हमने जमा किया तो बैलेंस करने के लिए उसका उल्टा भी करेंगे, यानी नफी 1/4। ठीक है, तो ये मैंने बैलेंस कर दिया। अब आखिर में क्या बचा मेरा, आखिर में ये बचा, है ना, नफी 20 बराबर 0। ठीक है, तो नफी 20 बराबर 0, ये इतना बच गया। ये लास्ट का था मेरा सवाल में, है ना, जो मैंने लिखा नहीं था। तो ये मेरा अभी देखिए, इसको आगे कैसे करेंगे वो हम देखते। इसलिए अब ये पूरा यहाँ से लेके, स्टार्ट से लेके, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या बन गया पता आपको, ये आपका ज़ाब्ता बन गया। कौन सा वाला ज़ाब्ता बन गया, ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये स्टेप बन गया वो। ठीक है, कौन सा स्टेप बन गया, ये वाला, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो x की कुव्वत 2 जमा 2xy जमा y की कुव्वत 2। तो इसका जवाब ऐसे लिखेंगे हम, x जमा y द होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, x जमा y द होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अभी इसको पूरे को पहले ब्रैकेट में ले लेंगे। तो x की कुव्वत 2
जमा एक्स जमा 1/4, ये पूरा एक साथ है ब्रैकेट में, ठीक है, पूरा एक साथ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बीच में लिखेंगे जमा, बीच में हमेशा याद रखें जमा ही लिखना है। अंदर क्या बच गया यहाँ पर इस तरफ, नफी 1/4 बचा, नफी 20 बचा, बराबर 0, ये जैसा आके वैसा। इसको भी ब्रैकेट में ले लिया, इतने पार्ट को ब्रैकेट में ले लिया और शुरू के इतने पार्ट को हमने ब्रैकेट में ले लिया। अब इसके बाद क्या आएगा, इसलिए अब ये तो हमारा बन गया जाब्ता, ठीक है, तो पहला हमारा जाब्ता, ठीक है। तो अब इसको लिखना है अपने को x जमा वाई द होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपना x क्या है, ये अपना a है, राइट, और ये अपना b है। x बोलो या a बोलो, b बोलो या y बोलो, चलेगा, ठीक है। तो अपन लिखेंगे ब्रैकेट में क्या आता है, ब्रैकेट द होल स्क्वायर, और बीच में यहाँ जमा है, ठीक है, शुरू में। तो यहाँ हम लिखेंगे जमा, और पहले आता है x, x क्या अपना x की कुव्वत 2 का जज़रुल मुरब्बा x, और y का जज़रुल मुरब्बा क्या है, 1 का जज़रुल मुरब्बा 1, 2 4 का जज़रुल मुरब्बा 2 है ना, ठीक है। तो ये लिख लिए, और फिर उसके बाद में ये हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं है, कुव्वत 2 है, जमा जैसा के वैसा। अब इसको हल कर लेते, ये नफी 4 को तिरछा ज़र्ब करेंगे हम, तो ये नफी 1 जैसा के वैसा, नफी 20 चौक 80 बटे में क्या बच गया, पूरे के नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। इसको रैशनलाइज करना बोलते, रैशनलाइज कर लिए, बराबर। इसलिए ये हो गया x जमा 1/2 पूरे का मुरब्बा द होल स्क्वायर, जमा अब ये अंदर क्या होगा, नफी नफी जमा होगा 80 और 81, अलामत नफी की, बटे में 4 जैसा के वैसा, बराबर 0, सॉरी यहाँ पे 0 रह गया। इसलिए अब ये तो देखिए ये पूरा जो है ये कुव्वत 2 में है, या ये कुव्वत 2 में नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कुव्वत 2 में लाएंगे अगले स्टेप में। तो ये जैसा के वैसा x जमा 1/2 द होल स्क्वायर, ठीक है, जमा। अब ये पहले तो इसको क्या कर लेते हैं, हम हल कर लेते हैं, नफी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जमा नफी नफी हो जाएगा, ये जमा हट जाएगा, जमा नफी नफी हो जाएगा, और 81 किसका जज़रुल मुरब्बा है 9 का, और 4 किसका जज़रुल मुरब्बा है 2 का, तो वो लिख के उसके ऊपर बाहर कुव्वत 2 डाल देंगे मुश्तरका तौर पर, बराबर 0 आगे का जैसा के वैसा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगले स्टेप में अब ये बन गया आपका ज़ाब्ता, देखिए कौन सा वाला ज़ाब्ता, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम लिख लेते हैं रीजन में अपने समझने के लिए कि यहाँ पर कौन सा ज़ाब्ता आया, a + b द होल स्क्वायर का ज़ाब्ता आया। क्या है वो, a² + 2ab + b², राइट। इसको x y की शक्ल में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप में आपका आया ये ज़ाब्ता, ये स्टेप में, ठीक है, ये वाला। तो इसको ब्रैकेट में रीजन के तौर पर लिखेंगे तो बेहतर होगा, और आप याद भी कर ले। अब यहाँ पर जो ज़ाब्ता आ रहा है वो ये वाला ज़ाब्ता है, a का मुरब्बा नफी b का मुरब्बा होता है a नफी b और a जमा b, ठीक। तो ये ज़ाब्ता हमको यहाँ इस्तेमाल करना है। तो देखिए ये पूरा अपना जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये a है, और ये बीच में नफी, राइट, और ये पूरा जो है ये b है, ठीक है। तो ये दिख रहा है, ये स्टेप a का मुरब्बा नफी b का मुरब्बा, राइट। तो अपने को ऐसे लिखना है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे ब्रैकेट, ओके। तो इसलिए a क्या है मेरा x नफी, फिर b क्या है 1/2, ठीक है, वो लिख दिया मैंने, सॉरी ये एक पूरा है अपना, ये पूरा है, राइट, इतना यहाँ से यहाँ तक। तो x जमा 1/2 लिखा, फिर बीच में नफी, b क्या है मेरा 9/2, राइट। ये पूरे को ले लूंगा ब्रैकेट में, ये पहली ब्रैकेट बन गई ये वाली, ठीक है। अब दूसरी ब्रैकेट बनाना है, सेम जमा में लिखेंगे, यही सेम हम लिखेंगे, यही सेम जो यहाँ बनाए हैं उसको जमा में, ठीक है। तो x जमा 1/2, ये तो पूरा सेम लिखे, a लिख दिया ये, ठीक है। अब बीच में यहाँ पर आ जाएगा जमा, सप्ते का ये वाला जमा, और फिर b क्या है मेरा 9/2, ठीक है, बराबर 0 जैसा आके वैसा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, अभी अगले स्टेप में क्या हो जा रहा है, इसलिए तो ये x जैसा आके वैसा x, अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, दोनों का नसब नुमा एक जैसा है, एक बार लिखेंगे, ठीक है, दोनों के नसब नुमा को। तो बटे 2 एक बार हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर
एक का और जमा एक और नफी 9, ठीक है, ये हल होगा, ठीक है आपका। तो जमा नफी नफी होता है, तो 9 में से एक गए, क्या बचा, नफी 8 बचा, क्या बचा आपका, नफी 8, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पर जमा ही लिख देता हूँ। अब यहाँ देखिए 1 पर और ये नफी 9, ठीक है, 1 नफी 9, ठीक। तो 1 नफी 9, ये एक ब्रैकेट में आ गया। दूसरी तरफ बढ़ेंगे हम, तो दूसरी ब्रैकेट में क्या है, x जैसा कि वैसा x, अब यहाँ जमा ही लिख लेते हैं हम, ठीक है। क्या है यहाँ पर, नसबनुमा एक जैसा एक बार लिखेंगे, तो नसबनुमा एक बार लिख दिए 2, और ऊपर क्या बचा, 1 और जमा 9, ठीक है, 1 जमा 9, 1 जमा 9 बराबर 0 आगे जैसा आ गया बस। इसलिए ये हो गया x जमा, अब इसको हल कर लेते, जमा नहीं लिखते, हल कर लेते। तो जमा नफी नफी होगा, तो नफी 8 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा नफी 8 बटे 2, ठीक। और उसी तरीके से x, ये जमा 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 होगा, 1 और 9 10 हो जा रहा है, जमा 10 आएगा बटे 2 बराबर 0, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में ये हो जा रहा है 2 1 का 2, 2 चौक 8, 2 1 का 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ बच्चा x नफी 4 का ब्रैकेट, और यहाँ बच्चा x जमा 5 का ब्रैकेट, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से आपका याद है आपको, जायज़ ज़रबी के तरीके में हम करते थे, दोनों को 0 दे देंगे, x नफी 4 बराबर 0, बीच में लिखेंगे या x जमा 5 बराबर 0। तो इसलिए x बराबर नफी 4 दूसरी तरफ आएगा तो हो जाएगा जमा 4, या x जमा 5 दूसरी तरफ आएगा तो हो जाएगा नफी 5। तो ये आ गए हमारे जवाब, जिस पर कितने मार्क्स से, आधे मार्क्स। हम बॉक्स बनाकर हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, और आखिर में जवाब लिखेंगे आधे मार्क्स के लिए, ठीक है। तो जवाब में जवाब दी हुई मुरब्बई मसावात के